افغانستان میں حملوں سے بچ کر عبداللہ بیوی بچوں سمیت پاکستان آ گیا اور یہاں روزگاری کی وجہ سے اس کی زندگی میں مزید دشواری ہوگی اور 2 مہینے کا کرایہ جب نہ دے سکا تو مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا۔ عبداللہ کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے اور اوپر سے گورنمنٹ غیر قانونی تارکین کو پکڑ رہی تھی۔ عبداللہ ایک دن کا وقت لے کر گھر سے نکل گیا اور رات کو مالک مکان سے جھوٹ بولا کہ میں پیسے لے کر آ رہا تھا کہ میرے پیسے راستے میں کہیں گر گئے۔ اتنا سنتا ہی کہ عبداللہ کا بیٹا گھر سے نکل گیا اور راستے میں پیسے ڈھونڈنے لگا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر لوٹا تو عبداللہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عبداللہ شروع سے ہی بڑا محنتی اور جی جان لگا کر کام کرنے والا تھا۔ جب بھی دوسرے مزدور اسے تھکن اتارنے کا کہتے تو وہ جواب دیتا کہ ہم پٹھان ہیں اور پٹھانوں کو تھکن نہیں ہوتا، تم لوگ آرام کرو ہم یہ کر لے گا۔ دوسرے مزدور بھی اپنے حصے کا کام اسی پر ڈال دیتے اور وہ بغیر چوچڑا کیے خاموشی سے لگا رہتا۔ مگر آج جب کام کے دوران ٹھیکیدار نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا تو وہ تھوڑا پریشان سا ہوا تھا۔ سارے مزدور کھانا کھانے بیٹھے تھے مگر وہ مسلسل اس لیے کام کر رہا تھا کہ ٹھیکیدار کی نظر میں رہے۔ کہیں نہ کہیں دل میں خیال تھا کہ ٹھیکیدار اسے کام سے ہی نہ نکال دے ورنہ اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد جب وہ ٹھیکیدار کے پاس گیا تو اسے ایک نظر عبداللہ پر ڈالی، پھر کہنے لگا عبداللہ میاں ہوگی تیاری پھر واپس جانے کی؟ ایسا سوال تھا کہ جس نے اس کے دل کو پیچ دیا تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ بے مشکل سوال پر سوال کرنے لگا کہ کہاں کی تیاری صاحب؟ ٹھیکیدار مسکرا کر بولا، روز ہی تو مسجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ افغانیوں کو واپس سے ان کے ملک میں بھیج رہے ہیں، تم بھی افغانی ہو، کیا واپس نہیں جانا؟ ٹھیکیدار کی بات سن کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ کہنے لگا صاحب جی ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے 55 سال ہو چکا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھا تب ہمارا ماں باپ ہم سے بڑے 10 بہن بھائی کو لے کر پاکستان آیا تھا، اور اب ہم کیسے اس ملک کو چھوڑ کر واپس افغانستان چلا جائے؟ مگر خیر جب ٹھیکیدار نے جیب سے 2000 روپے نکالے اور عبداللہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آج اتنے پیسے دیکھ کر عبداللہ چونک اٹھا۔ اسے تو روز کی 800 مزدوری ملتی تھی، مگر اس کے بعد جو آباد ٹھیکیدار کہی وہ سن کر تو عبداللہ کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ ٹھیکیدار کہنے لگا کل سے تم کام پر مت آنا، میں نے اور مزدور رکھ لیے ہیں، تم اب بس یہاں سے جانے کی تیاری کرو، اگر تمہیں مزید یہاں پر کام پر رکھا تو میرے لیے مصیبت ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ نے کچھ کہنا چاہا مگر ٹھیکیدار جا چکا تھا۔ وہ 2000 روپے لے کر دکان سے سودا سلف لے کر بوجھال قدموں سے گھر جانے لگا۔ آنسو تھے کہ آنکھوں میں بار بار آ رہے تھے۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اس ملک کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ اسے تو افغانستان کا نام سن کر ہی ہول اٹھنے لگتے تھے، ایک خوف کی لہر خون میں دوڑ سی جاتی تھی۔ اسے اپنے ابا کی کئی باتیں یاد آنے لگی جو اکثر وہ سنایا کرتے تھے۔ انہیں پاکستان میں مقیم ہوئے 25 سے 26 سال ہو چکے تھے۔ عبدالحیدر نے بڑی ہی دشواری سے اپنا ملک چھوڑا تھا اور نہ ان جیسے غریب لوگوں کے لیے ہجرت کرنا آسان نہ تھا۔ وہاں پر دہشت گردی عروج پر تھی، کب کرنا نہ کرنا تھا، وہاں پر کب ہے کہاں دھماکہ ہو جاتا، کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ قانون نام کی کوئی چیز موجود ہی نہ تھی اور امیر شخص اپنے کم تر حکمرانی کر رہا تھا۔ حکمرانی تک تو بات ٹھیک تھی، مگر جب اونچی ذات کے لوگوں نے آئے روز گاؤں میں ٹھس کر نکوانی لڑکیوں گواہ کرنا شروع کی تو بات ان پٹھانوں کی عزت پر آ چکی تھی۔ عبداللہ کی پھوپھو نجمہ خاتون جس کی عمر اس وقت 17 سال تھی، ایک رات کسی افغانی سردار ان کے گھر کے والدین منتیں کرتے رہ گئے، اپنی پگڑی اتار کر بڑے سرداروں کے قدموں میں رکھ دی، مگر ان کو رحم نہ آیا۔ اگلی صبح وہ نجمہ خاتون کو گھر چھوڑ گئے تو عبداللہ کے والدین کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بہن کو گھر کے اندر داخل کیا اور پھر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ پیر باندھ کر گلے پر چھری چلا دی۔ یہ منظر عبداللہ کی ماں اور سبھی بڑے بہن بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر کوئی بھی جا کر نجمہ خاتون کو بچا نہیں سکا۔ نجمہ وہاں درندگی کا نشانہ بنی اور گھر آ کر بھائیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک طرف دہشت گردی اور پھر افغانی سرداروں کی حکومت، یہی وجہ تھی کہ جس نے ان کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ عبداللہ نے اپنا سر جھکایا اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک دی تو ساتھ ہی گھر کا دروازہ کھلا۔ یہ اس گھر کا مالک مکان تھا۔ سلام دعا کے بعد مالک مکان بولا کہ عبداللہ کرایہ کب تک دے رہے ہو؟ آج 12 تاریخ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر انتہائی مسکین سی شکل بنا کر کچھ مہلت مانگنے لگا۔ مالک مکان نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مالک مکان نے مشکل سے ہی 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم نے 1 ہفتے کے اندر مجھے کرایہ ادا نہ کیا
तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मुझे किरायादारों की कमी नहीं है। अब वैसे भी तुम लोगों के जाने का वक्त आ चुका है। एक तर्ज करता हूँ मालिक मकान वहां से जा चुका था। ये बात भी अब्दुल्ला के दिल में चुभी थी। वो तो कितने सालों से इस घर में रह रहा था। मालिक मकान ने आज तक इससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो तो बिल्कुल बहन भाइयों जैसा रवैया रखते थे, मगर गवर्नमेंट के आर्डर के बाद सबको तो जैसे लोग गैर लगने लगे थे। वो जहां भी जाता तो सब इसे यही कहते कि वो अफगानी है, वहां कब तक जा रहा है। ऐसे सवाल सुन सुनकर इसका दिल फटने को जाता था। वो घर में दाखिल हुआ तो इसके 5 बेटियां और 4 बेटे इसके इंतजार में बैठे थे। देखकर फौरन इसके आस पास घूमने लगे और एक दूसरे की शिकायतें लगाने लगे। इसका दिमाग तो माउफ हो रहा था। इसने बच्चों की किसी बात का जवाब न दिया और चलता हुआ कमरे में आ गया। बीवी महसूस कर चुकी थी कि शोहर काफी परेशान है। आखिर होता भी तो क्यों ना, वो तो खुद दर रो रो कर अपनी आंखें सुजा चुकी थी। इस मोहल्ले में रहते हुए ने कई साल बीत चुके थे। हर एक के साथ इसका अच्छा तलक था और ये मोहल्ले वाले इसकी मदद भी किया करते थे। मगर अब जब इस जगह को छोड़ने की बात आई थी, वो रो रो कर हकार हो चुकी थी। मगर जाना भी तो जरूरी था। जिन लोगों को ये खबर मिलती कि ये लोग अफगानी हैं, तो वो इन्हें अजीब सी नजरों से देखने लगते। कहने लगे कि अफगानी लोग तो दहशतगर्द होते हैं। कितने ही अफगानी आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बम धमाके किए हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। हम तुम लोगों पर एतबार ही नहीं कर सकते। एकदम अफगानी देखकर तो इन्हें धमकी का सा लगा। 2000 रुपए का सौदा लाकर इसने अपनी बीवी के हाथ में दिया और कहने लगा कि अब जैसा भी है इसमें गुजारा करो, क्योंकि ठेकेदार ने मुझे काम से निकाल दिया है। जब तक वो सौदा सलफ चला रहा है तो अब बस यहाँ से जाने की तैयारी करो। अगर तुम्हें मजीद यहाँ पर काम रखा तो मेरे लिए मुसीबत हो सकती है। यह सुनकर अब्दुल्ला ने कुछ कहना चाहा, मगर ठेकेदार जा चुका था। इन्हें पाकिस्तान में मुकीम हुए 25 से 26 साल हो चुके थे। अब्दुल हैदर ने बड़ी दुश्वारी से अपना मुल्क छोड़ा था और ना ही इन जैसे गरीब लोगों के लिए हिजरत करना। वहां पर दहशतगर्दी अरूज पर थी। कहाँ धमाके हो रहे थे। मेरे बच्चे खाकर पेट भर लेंगे। यह सुनकर इस औरत ने एक अचाट सी नजर इस पर डाली और कहने लगी कि अच्छा देखती हूँ, अगर कुछ मिलता है तो ला देती हूँ। इसके पास सुबह की बची हुई रोटी तो मौजूद ना थी, अलबत्ता सूखी रोटी के टुकड़े जरूर पड़े थे। वही लाकर इसे दे दिए और कहने लगी कि ये लो, मेरे पास तो यही है। और रोटी तो इसने अपने मुर्गे मुर्गियों को डाल दी। यह सुनकर अब्दुल्ला की बीवी ने गहरी सांस खारिज की और वह सूखी रोटी लेकर घर आ गई। बच्चे भूख से बलक रहे थे। इसने इसी रोटी को पानी में भिगोया, जब नरम होगी तो अपने बच्चों को खिलाने लगी। अब्दुल्ला से यह मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो किसी न किसी तरह लोगों की मिन्नतें करते हुए इनसे काम मांगने लगा। इसे कोई घंटे 2 घंटे के लिए मजदूरी करवा भी लेता तो 200-300 रुपए दे देता। इतने पैसे में तो इतना आटा भी नहीं खरीद सकता था जो इसके बीवी बच्चों खा सकते। इन्हें घर घर जाकर खाना मांगना पड़ता। अब्दुल्ला के बच्चे मोहल्ले में लोगों के दरवाजे खटखटाने लगे। जो भी दरवाजा खुलता तो इनसे खाना मांगते। जिनको इनके मासूम शक्ल पर रहम आ जाता, वो इन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते। कुछ खवातीन तो इन बच्चों पर हाथ उठाने से गुज़ेर नहीं किया करती थी। अब्दुल्ला का सबसे बड़ा बेटा, जो कि 12 साल का था, समझदार था, मगर जब से खुद छोटे बहन भाइयों को बलकता देखा तो इससे बर्दाश्त न हुआ तो इसने गलत काम करने की ठान ली। आखिर को अब भूख तो मिटानी थी। वो चलता हुआ मोहल्ले की एक दुकान पर आया, जहां पर दुकानदार दुकान में बैठा सो रहा था। इसने इस बात का फायदा उठाते हुए दुकान से कुछ बिस्किट उठा लिए और भागता हुआ घर आ गया। वो खुश था कि किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी कि दूर से आता हुआ एक शख्स इसे देख चुका है। जैसे ही वो बिस्किट लेकर घर गया तो इसके छोटे बहन भाई देखकर खुश हो गए। माँ सवाल करने लगी कि बिस्किट तुम कहाँ से लेकर आए हो, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई जो तुम इतने बिस्किट खरीद सकती हो। वो माँ को कुछ कहता कि इससे पहले दरवाजा दर दर बजने लगा। इस लड़के को तो होश ही उड़ गए थे, चेहरा सुर्ख होने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला गया तो बाहर 2 मर्द खड़े थे। एक दुकानदार था और एक शख्स था। कहने लगे अपने बेटे को बाहर भेजो। अब्दुल्ला का बेटा डर चुका था, न जाने वो लोग अब इसे क्या कहते, मगर इसने हिम्मत की और दरवाजे पर आया। इसे दरवाजे पर देखते ही दुकानदार ने इसे गर्दन से और जराटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारने लगा। इसका सफेद चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो इसे गालियां देते हुए कहने लगा, तुम्हें तो हम बड़ा ही शरीफ समझते थे, मगर अब तुम चोरी भी करने लगे हो। वो कहता हूँ मैं शफकत को कि निकाले तुम लोगों को इस मोहल्ले से। चोर कहीं दफा हो जाओ। अपने मुल्क में यहाँ रहकर तुम लोगों ने बस हमारे मुल्क का नुकसान ही करना है। वो पठानी थी, गैर महरम के सामने नहीं जाती थी, मगर जब बेटे को मारता देखा तो फौरन बाहर निकल आई। इन लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी।
कहने लगी कि माफ कर दे, बस मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो बस इसीलिए ये आपकी दुकान से चीजें उठा लाया। दुकानदार को इनके चेहरों पर जरा भी रहम न आया। वो आगे बढ़ा और बच्चों के हाथ से बिस्कुट का पैकेट छीन कर वापस अपनी दुकान पर चला गया। शाम को अब्दुल्ला घर आया और अपने बेटे की यह बात सुनी तो वो भी गुस्से के मारे बेटे को मारने लगा। कहने लगा, रही सही इज्जत भी तुम लोगों ने मेरी इस मोहल्ले में खत्म कर दी। मैं तो अब कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पहले ही सब लोग हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। एक हफ्ता गुजर चुका है मगर अभी तक इसके पास इतने पैसे नहीं हो पाए। 2 माह का किराया इसके सर चढ़ चुका था। मकान मालिक तो इसकी जान लेने पे आ गया था। इसी रात दरवाजा दड़ दड़ बजने लगा। अब्दुल्ला घर से बाहर निकला तो मालिक मकान काफी गुस्से में था। कहने लगा कि अब्दुल्ला, मुझे हर हाल में मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मजीद देर की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मैं भी गरीब बंदा हूँ, इस किराए से मेरे खर्चे पूरे होते हैं। मजीद 2 दिन की मोहलत है। अगर तुम मुझे किराया ना दिया तो इसी वक्त तुम लोगों को घर से निकाल कर दूसरे किराएदारों को ये घर किराए पर दे दूंगा। अब्दुल्ला तो परेशान सा हो गया था। मुंह में तो गोया जुबान ही ना रही थी। एक से बढ़कर एक परेशानी इसके सर पर थी। काम इसे मिल नहीं रहा था, बच्चे इसके भूखे थे, मालिक मकान अलग किराया मांग रहा था और आज जो खबर इसने सुनी थी वो तो वैसे ही इसके लिए परेशान कुन थी। अब तो पुलिस बकायदा छापे मार कर अफगानी पकड़ रही थी और इन्हें इस मुल्क से निकाल रही थी। इन्हें तो इस बात की फिक्र थी कि वो वहां जाकर करेंगे क्या। इनका तो कुल सरमाया यहीं पर था। अगर वो अफगानिस्तान चले जाते तो हाथ में फूटी कोड़ी भी मौजूद ना थी। वहां जाकर इन्हें नया घर, फिर से काम और आगे की जिंदगी कैसे गुजारते, ये सोचकर इनका दिल डूबने लगा था। वो पाकिस्तान में जैसे भी रह रहे थे, यहाँ पर सुकून की जिंदगी थी, मगर न जाने लोग क्यों इन्हें बुरा समझकर इस मुल्क से निकालने पर तले हुए थे। सारी रात अब्दुल्ला सो न सका। कई परेशानियों ने इसे घेर रखा था। घर में खाने को कुछ भी ना बचा हुआ था। बच्चे जो मोहल्ले से कुछ मांग कर लाते वही होता जिसे खाकर वो लोग गुजारा कर रहे थे। अब्दुल्ला तो कई रोज से पेट भर के खाना भी नहीं खाया था। अगली सुबह वो उठा, अपनी गहरे नफ्स को एक तरफ रखते हुए लोगों की मिन्नतें करने लगा। उसकी आंखों में तो आज आंसू भी आ चुके थे। वो लोगों की मिन्नतें तरले करते हुए हाथ जोड़े, बाज लोगों के तो कदमों में भी गिर गया। कहने लगा कि मुझ पर रहम करे, मेरे घर में बच्चे हैं, सभी भूखे हैं, इन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप लोग क्यों हमारे खिलाफ हो चुके हैं? हम भी तो आप ही तरह के इंसान हैं। हमारी रगों में भी तो खून एक ही रंग का दौड़ता है। हम एक मजहब के मानने वाले हैं। आप हमें काम पर रख लें ताकि जब तक हम यहाँ पर हैं कम से कम हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। मगर लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हुकूमत की तरफ से आर्डर आया है कि तुम लोगों को जहां भी देखो फौरन पुलिस को इत्तला की जाए, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर अब पाकिस्तान में गैर मुल्कों का रहना जुर्म है। बेहतर है कि तुम लोग तैयारी पकड़ो और अपने मुल्क चले जाओ। यहाँ पर अब तुम लोगों को यूं ही रहना पड़ेगा। तुम लोगों को यहाँ पर कोई हिमायती नहीं है। ये जानकर अब्दुल्ला को बड़ी तकलीफ हुई थी। आखिरकार वो यूं ही सड़क पर किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इसे अपने कई मुसल्फ अफगानी पठान चलते फिरते दिखाई दिए थे। एक तो इंतहाई बूढ़ा अफगानी भी इसे दिखाई दिया था, जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी रेड़ी घसीट कर चलता जा रहा था। इसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वो बाजार में जहां पर अपनी अशिया की रेडी लगाता था इसे वहां से हटा दिया जाता था और यही कहा था कि अपना सामान और रेडी किसी और को फरोख्त करो और जल्द से जल्द पाकिस्तान से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ा दिहाड़ीदार मजदूर जिसकी जेब में इस वक्त सिर्फ 150 रुपए मौजूद था और घर में बीवी बच्चे इसके आस पास बैठे थे कि वो शाम को आएगा तो कुछ खाने का बंदोबस्त करेगा। भला वो खाली जेब के साथ अपने बीवी बच्चों को क्या जाकर बताता। वो दिन भी यूं ही गुजर गया, मगर अब्दुल्ला पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया था। 3 दिन गुजर चुके थे और आज रात 10 बजे तक का वक्त था। अब्दुल्ला सोचने लगा कि अब क्या करे, क्या बहाना लगाए जिससे मकान मालिक को इस पर तरस आ जाए। 3 दिन से बच्चे भूखे थे, इंतहाई कमजोर हो चुके थे। वो घर में दाखिल हुआ तो इतनी हिम्मत ही ना हुई कि सर उठाकर अपने बच्चों का चेहरा देख सके। कई खानदान वापस अफगानिस्तान जा रहे थे, जबकि कुछ खुफिया तौर पर छुपने की तैयारियों में लगे हुए थे। इनकी यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरह वो पाकिस्तान से ना जाए, क्योंकि यहाँ पर तो इनका कारोबार किसी न किसी तरह तरीके से चल सकता था। अगर वो अफगानिस्तान चले गए तो वहाँ के हालात तो पाकिस्तान से भी बदतर थे। वहाँ पर तो इनको काम मिलना भी मुश्किल था। इतनी बड़ी हिजरत वहाँ पर होती तो वैसे भी कई माह तक इसे कोई काम नहीं मिलने वाला था। इसे तो अपनी मौत नजर आ रही थी, मगर क्या हो सकता था। जैसे भी रात के 10 बजे तो मालिक मकान इनका दरवाजा खटखटाने दिया। कहने लगा कि अब्दुल्ला मियाँ किराया दो, वरना सामान उठाकर यहाँ से निकल जाओ।
ये सुनकर अब्दुल्ला कुछ घबराया, फिर कहने लगा कि मैं पैसे तो लाया था मगर रास्ते में आते हुए मेरी जेब से गिर गए। मैं अब इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मुझे नहीं मिल रहे। ये सुनकर मालिक मकान के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ भी बोलने लगे हो। अब्दुल्ला फौरी सर पर हाथ रखते हुए बोला, पठान कभी झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ बोले भी तो इसकी इंतहाई मजबूरी होती है। मैं सचमुच पैसों का बंदोबस्त कर रहा था मगर रास्ते में आते हुए वो न जाने कहाँ गिर गए। इतना सुनता कि अब्दुल्ला का बड़ा बेटा फौरन घर से निकल गया। कहने लगा कि मैं अभी पैसे ढूंढ कर लाता हूँ, वो यही आस पास गिरे होंगे। मालिक मकान वहाँ अब्दुल्ला के घर में बैठ गया। कहने लगा कि ठीक है, तुम पैसों का बंदोबस्त करो, मैं यहीं बैठा हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो मैं यहीं से तुम लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। वैसे भी आज रात 12 बजे का वक्त है, इसके बाद तुम लोगों को मैंने इस घर से मजीद पनाह नहीं देनी। मेरे खिलाफ भी पर्चा कर सकता है और मैं क्यों तुम लोगों की खातिर अपनी जिंदगी अजरत करूं। बेहतर है कि तुम मेरा किराया दो और अपना यहाँ से चलते बनो। अब्दुल्ला की बीवी रोने लगी थी। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए मालिक मकान के आगे हाथ जोड़ने लगे। कहने लगे कि आप हम पर यह जुल्म मत करें। आप हमें आधी रात को घर से कैसे निकाल सकते हैं? कि आपको हम मासूमों पर तरस नहीं आता? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मालिक मकान तो जैसे पत्थर दिल हो चुका था। कहने लगा कि तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अब मैं भला क्या कर सकता हूँ? ये तो गवर्नमेंट के आर्डर है, मैं खुद थोड़ी कह रहा हूँ। अब्दुल्ला का बेटा सड़क पर पुरानी सी स्लाइटन लेकर पैसे ढूंढ रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे। यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से पैसे मिल जाए और वो इन्हें लेकर किराएदार को देता। घर में अब्दुल्ला अलग से परेशान हो रहा था। बार बार नजरें दरवाजे की तरफ जा रही थी। इसने तो झूठ बोला था। अब न जाने बेटा कहाँ खज्जल हो रहा होगा। इसने गहरी सांस खारी की कि तभी बेटा हाँफता कांपता हुआ घर में दाखिल हुआ। इसके हाथ में हजारों के कई नोट थे। लाकर माली मकान के हाथ पर रखे और बोला, ये लो चाचू, मिल गए पैसे। अब तुम हमें यहाँ से नहीं निकालोगे ना? मालिक मकान पैसों को गिनने लगा जो कि पूरे थे। अब्दुल्ला हैरान था कि ये पैसे इसने कहाँ से लिए। कहीं चोरी तो नहीं कर आया। मगर अब्दुल्ला के बेटे ने सचमुच वो पैसे सड़क पर पड़े मिलने चुके थे। पैसे लेकर अगले ही पल मालिक मकान कहने लगा, बस किराया वसूल हो चुका है। अब्दुल्ला मियाँ, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते जाओ, क्योंकि मजीद तुम लोगों को यहाँ मेरे खिलाफ भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर अब्दुल्ला का बेटा परेशान हो गया। कहने लगा, आपने कहा था कि किराया दे दो तो रहने दूंगा, मगर मालिक मकान ने आधी बात बताई थी। वो अपना किराया वसूल कर चुका था। तो अब्दुल्ला का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगा। अब्दुल्ला इनकी मिन्नतें करने लगा। इसकी बीवी भी रो रही थी। बच्चे अलग परेशान थे कि अब वो इस सुनसान रात में कहाँ जाएंगे। मोहल्ले में हर घर तक इनके रोने की आवाजें जा रही थी। मालिक मकान इन्हें धक्के मार कर घर से निकाल चुका था और वो सड़क पर आ चुके थे। अब्दुल्ला कह रहा था कि हम पर इतना जुल्म मत करो, तुम लोगों को खुदा का वास्ता है, हम भी तो तुम जैसे ही मुसलमान हैं, गरीब लाचार हैं। कभी खुद को हमारी जगह पर रख कर सोचो तो तुम लोगों को इल्म हो। इसकी फरियाद मोहल्ले के कई लोगों तक जा रही थी। इसकी दुखी आवाजें सुनकर लोग घरों से निकल आए। लोगों के दिल पिच चुके थे। तो मालिक मकान को भी थोड़ी हया आने लगी। एक शख्स इन्हें अपनी घर की बैठक में ले गया और ठंडे दिमाग से समझाने लगा कि यहाँ तुम लोगों के लिए खतरे खाली नहीं है। डीठ मत बनो, अपने मुल्क में जाओ, अपना हक लो और वहाँ पर ही रहो। यहाँ पर चाहे तुम सदियां गुजार लोगे, फिर भी तुम लोग गैर कानूनी और गैर मुल्की रहोगे। अब्दुल्ला ने ये सुनते ही रोने लगा। कहने लगा कि मैं गरीब और मजबूर हूँ, बच्चे कई रोज से भूखे हैं, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? वहाँ जाकर क्या करूँगा? मेरे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। आखिरकार मोहल्ले वालों ने आस पास में मशवरा किया और फिर साहब ने हस्बे तफरीक 500 और 1000 रुपए इकट्ठे करना शुरू कर दिए और फिर वो सारे पैसे लाकर अब्दुल्ला के हाथ पर रखे। वो इतने पैसे थे कि वो अपने मुल्क जाकर भी चंद दिन तक आराम से खा पी सकते थे। मोहल्ले का एक शख्स इसे कहने लगा कि हमसे जितना हो सकता था हमने मदद कर दी है, अब इससे ज्यादा कहीं हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तो तुम हमारे हक में दुआ कर देना। हम तुम्हारे लिए दुआगाह हैं कि तुम और तुम जैसे जितने भी गरीब और मुफलिस लोग इस परेशानी में फंसे हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इन्हें जल्द से जल्द इसी मुश्किल से निकाले। अब्दुल्ला ने आखिरी बार सबको देखा और भीगी हुई आंखों से सबका शुक्रिया अदा करने लगा। फिर इसने अपना सामान उठाया, ढेरों यादें दिल में लिए। अब्दुल्ला ने आखिरी बार सबको देखा और भीगी हुई आंखों से सबका शुक्रिया अदा करने लगा। फिर इसने अपना सामान उठाया और फिर ढेरों यादें लिए दिल में। बीवी बच्चों का हाथ पकड़े एक सिमत चल पड़ा। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू, एक पल को आंसू आ, क्योंकि एक वक्त इन्होंने अब्दुल्ला के साथ गुजारा था। हाँ, वो गलियां सुनी हो चुकी थी जहाँ पर अब्दुल्ला के बच्चे अक्सर शोर मचाते खेला करते थे और मोहल्ले की औरतें इन्हें डांट दिया करती थी। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।
मजीद इस तरह की समकवाज कहानी और वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। 500 और 1000 रुपए इकट्ठे करना शुरू कर दिए और फिर वो सारे पैसे लाकर अब्दुल्ला के हाथ पर रखे। वो इतने पैसे थे कि वो अपने मुल्क जाकर भी चंद दिन तक आराम से खा पी सकते थे। मोहल्ले का एक शख्स इसे कहने लगा कि हमसे जितना हो सकता था हमने मदद कर दी है, अब इससे ज्यादा कहीं हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तो हाँ तुम हमारे हक में दुआ कर देना। हम तुम्हारे लिए दुआगाह हैं कि तुम और तुम जैसे जितने भी गरीब और मुफलिस लोग इस परेशानी में फंसे हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इन्हें जल्द से जल्द इसी मुश्किल से निकाले। अब्दुल्ला ने आखिरी बार सबको देखा और भीगी हुई आंखों से सबका शुक्रिया अदा करने लगा। फिर इसने अपना सामान उठाया और ढेरों यादें दिल में लिए। अब्दुल्ला ने आखिरी बार सबको देखा और भीगी हुई आंखों से सबका शुक्रिया अदा करने लगा। फिर इसने अपना सामान उठाया और फिर ढेरों यादें लिए दिल में। बीवी बच्चों का हाथ पकड़े एक सिमत चल पड़ा। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू एक पल को आंसू आ, क्योंकि एक वक्त इन्होंने अब्दुल्ला के साथ गुजारा था। हाँ वो गलियां सुनी हो चुकी थी जहाँ पर अब्दुल्ला के बच्चे अक्सर शोर मचाते खेला करते थे और मोहल्ले की औरतें इन्हें डांट दिया करती थी। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानी और वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।